سب کو آنا ہے سسٹم میں، پکڑ سکو تو پکڑ لو۔ ایک طاقتور وزیر کے جس کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ جو کہہ دے اسے حرف آخر خاص طور پر کراچی سے لے کر سندھ کی سیاست اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست میں اہم عنصر سمجھا جاتا ہے۔ کیا فیصلہ ہو گیا؟ اب باری کس کی ہے؟ وہ ایک نارمل سے آرٹس کونسل میں ہونے والے پروگرام کے اندر یکدم اپنی ہی حکومت کی کرپشن کی کہانیاں سنانا شروع کر دیتا ہے۔ ہم کیسے کریں گے؟ وہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ 20 ارب کی اپنی ہی حکومت کی فائلیں کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے ڈپارٹمنٹ میں جہاں یہ ساری لڑائی ہو رہی ہے 20 ارب روپے سے زیادہ کی کرپشن ہوئی ہے، 20 ارب روپے سے زیادہ۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، نہ ہی یہ زبان سے پسلنے کا عمل ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جناب والا یہ وزیر بہت سینئر وزیر ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر وہ اپنی حکومت کی کرپشن کی فائل کھولتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر اس وقت کہ جب کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے اندر موجود ہے، اہم اتحادی ہے، ایک وزیر اپنی ہی حکومت کی کرپشن کی فائل کیوں کھل رہا ہے؟ وہ کون سا تہلکہ ہے جو مچنے والا ہے؟ وہ کون سی آندھی ہے جو چلنے والی ہے؟ مگر رکیے گا، اس کے بعد میں آپ کو ایک اور کہانی بھی سناؤں گا، مگر پہلے یہ دیکھیں۔ یہ سب ایک کنٹینر کے اندر نظر آ رہے ہیں، اس جملے کو یہی باندھ دیں، ٹھیک ہے سر؟ بات اس کہانی کی حد تک نہیں تھی، گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر بڑے ہی تہلکے مچے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت ہی اپنے ایک طاقتور وزیر کے ایک اہم محکمے کے خلاف 7 ارب روپے کی FIR درج کرواتی ہے۔ وہ وزیر کے جسے بہت طاقتور تصور کیا جاتا ہے، جسے سینئر ترین وزیر کا عہدہ دیا جاتا ہے، وہی وزیر کے جو اس پروجیکٹ کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اسی وزیر کے خلاف 7 ارب روپے کی ایک فائل کھول دیتی ہے۔ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف ایک وزیر اپنی ہی حکومت پر کرپشن کی بات کر رہا ہے، دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جس پر الزام ہی کرپشن کا لگتا رہا، 18 سالوں میں اس سے کرپشن کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، یکدم اپنے ہی وزیر کے خلاف 7 ارب روپے کی اس کی وزارت کے خلاف کیوں FIR درج کرتی ہے؟ یہاں پر سوال ہے کہ وہ کون سا ایسا اندھیرا یا پھر وہ کون سی ایسی صبح ہونے والی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ معاملات ہو رہا ہے؟ کیا سسٹم کو لپیٹا جانے والا ہے؟ آخر کیوں یہ بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ جناب سب کے سب ایک ہی کنٹینر کے اندر بند ہوں گے، اور وہ بھی اس وقت کی مقتدرہ قوتوں، بلکہ میں یہ کہوں کہ جسے اسٹیبلشمنٹ کا خاص عادت بھی کہا جاتا ہے، فیصل واوڈا کی زبانی یہ آ رہی ہے۔ کہانی ابھی باقی ہے۔ معاملات ابھی تک یہاں تک رکے نہیں ہوتے کہ یکدم یہ فائل کھل جاتی ہے کہ نیب یاری ایکسپریس وے کے پروجیکٹ پر 16 ارب روپے کی جو زمینیں یہاں وہاں دی گئی ہے، وہ کمرشل جگہیں کہ جو کہ کوڑیوں کے دام جعلی فائلوں کے ذریعے دی گئی ہے، وہ تمام فائلیں کہ جو کہ گرین لائن کے لیے یا کہ ایک گرین بیلٹ کے لیے دی گئی تھی، وہاں پر چیزیں ہوئی ہیں۔ آخر کیوں نیب یکدم یہ فائل کھول دیتا ہے اور پھر اس کھولنے کے بعد کئی نئے سوالات جنم دیتے ہیں؟ گزشتہ صرف 1 مئی سے لے کر آج 17 مئی ہے، ایسی بہت ساری فائلیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کھل رہی ہے۔ وجہ کس طوفان کا پیش خیمہ ہے اور پھر یہ کون سا نیا طوفان سر پر بول رہا ہے؟ یہ ایک بار پھر کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے یا پھر یہ باتیں ہوائیں ہو جائیں گی؟ یہ 3 اسٹوریوں کے بعد ایک اور کہانی بھی ہے۔ ایک بہت بڑے آدمی کا کہ جسے اس شہر کے اندر، اس صوبے کے اندر سسٹم چلانے والا شخص قرار دیا جا رہا تھا، وہ شخص کیوں اس وقت ملک سے فرار ہو گیا ہے؟ وہ شخص کے جو کہ اس وقت SBCA کا نظام چلا رہا ہے، اس کے متعلق یہ بات کہیں کیوں جا رہی ہے کہ وہ اس وقت ملیشیا کے اندر موجود ہے؟ اور پھر
तीन बड़ी अहम शख्सियात के फ्रंट मैन इस वक्त ये मुल्क क्यों छोड़कर जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक सिंध से है, वो कौन सी जेरे जमीन ऐसी गर्दिशें आई हैं कि जिसकी वजह से इस वक्त सिंध की जमीन थर थर कांपने लगी है, इसमें कितने हकाइक मौजूद हैं, ये तमाम चीजें मिलकर एक नई स्टोरी बनाएगी। मैं आपको तमाम तफसीलात आज के प्रोग्राम में देने वाला हूं, मगर उन सब के लिए हमेशा की तरह शर्त यह है कि डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं और हिम्मत रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा, नहीं करेगा और नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शिकर से। ये एक आम सी शाम थी और ये कोई नया वाकया नहीं था। गुज़िश्ता कई दिनों से कराची के आर्ट्स काउंसिल के अंदर ये प्रोग्राम्स खसूसी तौर पर लेबर मजदूरों के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा था और खास तौर पर इसमें लेबर मिनिस्टर की बड़ी अहमियत है और लेबर मिनिस्टर हैं सईद गनी। वो सईद गनी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर भी हैं, वो सईद गनी कि जिसे मौजूदा बल्दियाती निजाम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर को लाने के लिए भी अहम किरदार अदा किया जाता है। वो सईद गनी कि जो कि वजीर बल्दियात थे लेकिन उनकी बन ना पाई और उसके बाद उन्हें वजारत लेबर दे दी गई और अब वजारत लेबर देने के बाद फिर उन पर कई सवालात उठाए गए। चेहरे बदल जाते हैं, कहानियां नहीं। आपके इल्म में होगा कि आज से कुछ माह पहले मैंने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि जिसमें मैंने कहा था कि आखिर क्या वजह है कि लेबर डिपार्टमेंट के अंदर 10 अरब रुपए के करीब करीब ये इतलात आ रही हैं कि मजदूरों को मोटरसाइकिलें दी जाएगी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें दी जाएगी। ये बजट भी अप्रूव हुआ, ये मोटरसाइकिल्स भी दी गई, लेकिन जमीन पर ये सब कुछ नहीं हो सका। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था और इस बहुत बड़े स्कैंडल में बहुत सारे सवालात उठे हैं। सईद गनी आर्ट्स काउंसिल में जाते हैं और आर्ट्स काउंसिल में जाकर वो ये बात कहते हैं कि उनकी वजारत के अंडर में 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है। जरा लफ्जों को गौर से सुनिएगा, 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है और वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे डिपार्टमेंट में जहाँ ये सारी लड़ाई हो रही है 20 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन हुई है। 20 अरब रुपए से ज्यादा। इसकी भी सुन लो भाई। एक वजीर, वो के जिसे ताकतवर वजीर कहा जाता है, जिसके मुतालिक ये मशहूर रहा है कि वो इस वक्त सिंध की एक बड़ी मशहूर शख्सियत यानी कि फरियाल तारपोल यानी कि जिसे अदी कहा जाता है, उनके बड़े करीब तस्वुर किए जाते रहे हैं। वो सईद गनी कि जिन्हें बिलावल भुट्टो ज़रदारी के करीब तस्वुर किया जाता है, वो सईद गनी कि जिस पर आसिफ अली ज़रदारी उस हद तक मेहरबान नहीं होते। मगर एक खड़ा हुआ वजीर, एक सीनियर वजीर जो कि कई सालों से इस ओहदे पर हो, वो यकदम जब अपनी हुकूमत के खिलाफ इशारा देता है कि यहाँ पर 20 अरब रुपए की करप्शन उसके महकमे में हुई है, तो यकीनन इसकी बाज़गश्त बहुत दूर तक जाती है। एक वजीर कभी भी अपनी वजारत के मुतालिक ये नहीं कहता कि मेरी वजारत के अंदर करप्शन हो रही है। इसका वाज़ेह मिसाल ये होता है कि वो अपनी हुकूमत से यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से टकराने की तरफ जा रहा है या फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर टकराने के लिए तैयार किया जा रहा है या फिर उसे इस बात का आशीर्वाद दे दिया गया है कि तुम आगे चलो और फिर ये मामला होंगे। ये सवाल है, जवाब कौन देगा? सईद गनी वो शख्स है कि जो कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेगा। सईद गनी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत सारे स्टेक्स हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को मौजूदा हालात में नाराज करने की वजह क्या है? ये किसी का आशीर्वाद है या फिर उन्होंने खुद अपने सर पर कफन बांध लिया है और अब पीपल्स पार्टी में उनके दिन गिने जा चुके हैं? मगर सवाल ये नहीं है। अगर बात यहीं तक रहती तो सवाल समझ में आता, जवाब भी समझ में आता और कहा जाता कि शायद उन्होंने अपनी चीजें हाथ से जाने दी है। मगर मामला यह हुआ है, कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया है कि जिसकी तरफ मैं आपको इशारा दे रहा हूं। क्या वजह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से ये बाज़गश्त सामने आना शुरू हुई है कि मौजूदा निजाम को लपेटा जा रहा है। बड़े मारूफ सहाफी सोहेल वड़ाइच अपने कहते हैं कि जुलाई में सिस्टम लपेटने की तरफ होगा। एक शख्स के जिसे खास तौर पे एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब तस्वुर किया जाता है और उसका नाम है फैसल वाउडा। फैसल वाउडा हमेशा सीजन के तौर पर निकलते हैं। जब कभी भी मौजूदा मुक़तदरा हलकों को अपने काम की बात करवानी होती है तो कहा जाता है कि उस वक्त फैसल वाउडा एक बेहतरीन
बेहतरीन हथियार के तौर पर, एक बेहतरीन माउथ पीस के तौर पर सामने आते हैं। फैसल वावड़ा के मुतालिक इसीलिए तमाम टीवी चैनल फैसल वावड़ा जो प्रेडिक्शन करते हैं, जो पेश गोई करते हैं, वो अमूमी तौर पर खबर की बुनियाद पर होती है, वो खबर होती है, और इसीलिए पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल्स उन्हें लाजमी तौर पर अपने प्रोग्राम्स के अंदर शामिल करते हैं। हामिद मीर जैसा जियो का प्रोग्राम हो या फिर कोई भी बड़ा टीवी चैनल का प्रोग्राम हो, उसमें फैसल वावड़ा को जरूर रखा जाता है। मैं आपके पास एक बड़ी चीज प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि देखिए जी, मुझे आइंदा सियासी मंजर में आगे कल परसों नहीं, महीनों में या तो सब एक कंटेनर में नजर आ रहे हैं या सब एक कंटेनर के अंदर नजर आ रहे हैं। इसको, इस जुमले को यही बांध दें, ठीक है सर। फैसल वावड़ा जब से बजट सेशन शुरू हुआ है, गुज़िश्ता 3-4 दिनों से मुसलसल मीडिया में आकर ये बात बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा निजाम को समेटा जा रहा है, मगर दूसरी तरफ इसी निजाम का एक बहुत ही अहम पिलर कि जिसे मोहसिन नकवी करार दिया जाता है, वो कि जिसे वजारत दाखिला कहा जाता है, वो मोहसिन नकवी के जिसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बड़ा ही करीबी तस्वुर किया जाता है, और ये तस्वुर किया जाता है कि राना सनाउल्लाह जैसा शख्स इनके लिए मुतल्लिक कहता है कि जनाब उनकी मर्जी है, वो चाहे तो वजीर आजम भी बन जाए, वो इस वक्त इस हुकूमत की ना जाने की बात करते हैं। मगर कहानी यहां तक नहीं है। जब करप्शन की एक कहानी यहां पर शुरू होती है तो अगला मामला यह शुरू होता है कि एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर वजीर कि जिसे न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ी मजबूत पोजीशन हासिल है, बल्कि उसे इस वक्त मौजूदा निजाम के अंदर भी बड़ी अहमियत हासिल है, उसका नाम है शर्जील इनाम मेमन। शर्जील इनाम मेमन को बड़ी ताकतवर शख्सियत तस्वुर किया जाता है इस वक्त सिंध के अंदर, और सिंध के सीनियर तरीन वजीर है। दौलत की कमी अब उनके पास है नहीं और निजाम के अंदर उनकी जगह इस वक्त मौजूद है। मगर क्या वजह होती है कि इस वक्त के वजीर आला सिंध एक इंक्वायरी कर रहे होते हैं, उनके रिश्तेदार जो कि इस वक्त चीफ सेक्रेटरी हैं, वो एक इंक्वायरी कर रहे होते हैं कि आखिर बीआरटी मंसूबे के पैसे कहां पर गए। वो वजीर आला सिंध को आगाह करते हैं और अगले ही लम्हे उसके पीडी जमीर अब्बासी और उसके मेन आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। आखिर क्या बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुद अपने ही वजारत की एक अहम जगह पर एक बड़ी अहम पोजीशन के आदमी पर 7 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम लगा देती है। बीआरटी मंसूबा नहीं चल पा रहा और ना ही अभी तक मुकम्मल होने के इम्कानात हैं। सबका ये कहना था कि इसके पीछे करप्शन है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस करप्शन को तस्लीम नहीं करती थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये बात बार बार कह रहे थे कि जनाब हमारे खिलाफ करप्शन की बात इसलिए की जा रही है कि हम पर दबाव डाला जा सके और कराची का इंतजाम लिया सके। ये मेरे लफ्ज नहीं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लफ्ज थे। अब मामला यह आ गया कि वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ही एक महकमे खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज करवा रही है। यानी कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इस हद तक दबाव है कि वो अपने तमाम के तमाम सिमतों को दुरुस्त करे, अदरवाइज उसके खिलाफ ऑपरेशन होगा। और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार हो चुकी है? मगर सवाल ये नहीं है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार होती तो फिर अगला मामला क्यों खड़ा होता? अगला मामला उससे बड़ा ये खड़ा हुआ कि नैब ने बाकायदा लियारी एक्सप्रेसवे के रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट की 16 अरब रुपए की जगहों के लिए एक नई फाइल का आगाज कर दिया है। आपके इल्म में होगा, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूं कि नैब ने एक चंद माह पहले ये कार्रवाइयां जब शुरू की, उससे यहां तक कि मुर्तजा वहाब को भी खत लिखा, उससे मुख्तलिफ महकमों को खत लिखा। इतलात ये आ रही थी कि अब उसके बाद बाकायदा इस वक्त नैब के चेयरमैन ने वजीर आला सिंध के साथ मुलाकात की, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, और वजीर आला सिंध के साथ उन्होंने एक फार्मूला तरतीब दिया। उसमें एक कमेटी बनी और उस कमेटी की के अंदर खास तौर पर चीफ सेक्रेटरी, वही चीफ सेक्रेटरी के जिससे बीआरटी मंसूबे की करेक्शन के लिए खत लिखा, जो कि मुराद अली शाह का रिश्तेदार है, वो एक खत लिखकर ये बात वाज़ेह करता है। अब मामला यहां पर ये आता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे करप्शन के हवाले से मैं एक और बड़ी बात कह दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल एक प्रोजेक्ट को बेचे जा रही है, वो है 21 लाख घरों की तामीर, जो कि 2022 के सैलाब के बाद उन्होंने तामीर किए। मेरी इत्तलात के मुताबिक उस हवाले से भी एक बहुत बड़ी फाइल खुल चुकी है, और न सिर्फ वो फाइल खुली है बल्कि उसमें एक बार फिर बड़े वुज़रा के नाम आना शामिल हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ गुज़िश्ता 15 दिनों के अंदर ये तमाम की तमाम जो एफआईआर हो रही हैं, ये तमाम के तमाम वजीर आकर खुद अपनी करप्शन की बात कर रहे हैं, ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस है, या फिर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इस हद तक दबाव बढ़ चुका है कि वो अपना किबला दुरुस्त करे, अदरवाइज उनका काम
लपेट दिया जाएगा। बात लपेटने की नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हद तक पहुंच चुकी है कि ये मामला लपेटे नहीं जाएंगे तो फिर उन्हें लपेट दिया जाएगा। क्या वाकई में अब पाकिस्तान के मुख्तदरा हलकों, खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद के अंदर ये आवाजें गूंजना शुरू हो चुकी है कि अब सिंध का मसला हल किया जाए और सिंध के अंदर मौजूदा निजाम को बेहतर किया जाए, और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए माहौल को दुरुस्त करने के लिए, उनके माहौल को जरा सा खींचने के लिए तमाम की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। और एक बार जो कुव्वतें ये बात कह रही थी कि सिंध के खास तौर पे कराची को वफाक के हवाले करने या फिर एक नए सूबे की तश्कील के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामला को अलग किया जाए, इस हवाले से मैं खबर आपको अगले प्रोग्राम के अंदर दूंगा। मगर ये बात सब बहुत तेजी के साथ आना शुरू हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे ऐसे फ्रंट मैन्स जो कि मुख्तलिफ वजारतों के लिए, मुख्तलिफ की पोजीशंस लोगों के लिए काम क्या करते थे, गुज़िश्ता कई दिनों से लापता है। लापता होने से मुराद ये कि उसमें से अक्सरियत इस वक्त ये मुल्क छोड़ चुकी है या मुल्क छोड़ने की तैयारी कर रही है। अगर मैं आपको एक बहुत बड़ा नाम दूं कि जिसके मुतालिक कई इशारे किए जाते थे और जिसके नाम के आगे ए जी लगा हुआ होता है, यानी हाँ जी लगा हुआ होता है, इतलात यह है कि वो इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। एक इतलात ये आ रही है कि जो इस वक्त पूरे सिंध के अंदर SBCA का निजाम चलाने वाले लोग हैं और जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि उसके बगैर कोई ठेका नहीं मिल सकता है, वो इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। यानी कि मैं आपको लेकिन उनका निजाम यहां पर जरूर चल रहा है। 2-3 बहुत बड़े बड़े नाम वो कि जिन्हें फ्रंटमैन करार दिया जा रहा था, दुबई, मलेशिया और लंदन के अंदर मौजूद है। खास तौर पे इस वक्त दुबई के बाद अब उनकी चेन मलेशिया से चलाई जा रही है और वहां पर निगाहें तेज हो चुकी हैं। तो क्या सिस्टम को लपेटने के लिए आखिरी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है या आखिरी मार्का लगाया जा रहा है? तो अभी तक का जवाब है नहीं। ये जो गुज़िश्ता 17 दिनों के अंदर कार्रवाइयां हुई हैं, ये डिपार्टमेंटल प्रेशर्स था। इसी की वजह से ये इत्तलात आना शुरू हुई और खास तौर पर वजीर आला सिंध ने ये इक़दामात उठाए तो उसके बाद वजीर आला सिंध पर ये बातें शुरू हुई कि जनाब वजीर आला सिंध को तब्दील किया जा रहा है और फिर तब्दील करने की बात है। यही वजीर आला सिंध के हवाले से जिन लोगों के नाम लिए जा रहे थे, गुज़िश्ता चंद दिनों से वजीर आला सिंध उन्हीं के साथ बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त शर्जील इनाम मेमन खास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है। आमतौर पर जहां कहीं पर भी जब डील्स की बात होती है, यानी कि आपको वो वक्त याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत गिरानी थी तो उस वक्त सिंध हाउस के अंदर जो मामला हुए थे वो शर्जील इनाम मेमन देखा करते थे। आज भी इत्तलात हमारी है कि इस वक्त जो मामला गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जो तोड़ने और लेने के मामला थे, वो शर्जील इनाम मेमन के सुर्ख थे। मगर मामला ये हुआ है कि वहां इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बाजी ले गई है और किस तरीके से ले गई है वो मैं आपको अपने किसी और प्रोग्राम में बताऊंगा। मगर सवाल ये कि क्या वाकई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अब मामला कशीदा हैं? तो जवाब मेरा अभी यह है कि अभी तक ये इशारे जरूर हैं लेकिन फील्डिंग्स मुकम्मल तौर पर नहीं लगी है, जो ये जाहिर कर रही है कि दीज आर द ओनली प्रेशर टैक्टिक्स। सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है, सिस्टम को भी लपेटने की बात नहीं हुई है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं अब मेरी, क्योंकि जब परिंदे उड़ते हैं तो अंदाजा हो जाता है। अभी परिंदे उस तरह से नहीं उड़ रहे। अब इसे सईद गनी ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है या फिर उन्होंने कुल्हाड़ी लगने से पहले अपने पांव को हटा लिया है, ये वो सवाल है जो आपको जवाब देगा। आइंदा दिनों के अंदर बहुत बड़ी खबरें और अहम खबरें आपको देने वाला हूं, तो डरिए नहीं, झिझके नहीं, घबराइए नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अल्लाह के बाद।